Good morning, students. Today I am going to start your second chapter from your hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. First, I'm going to just give you a general introduction about the story. The story is about a 37 years old businessman who is the narrator of the story. He has a wife named Mari and two children, Zonata aged 6 and Suzanne aged 7. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship, Wave Walker, which is an 23 meters long, 30-ton wooden hull, just like that of a famous Captain James Cook. The whole family started sailing from Plymouth, England on July 1976. The initial phase of the 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant while heading east. Along with the two newly hired crewmen, strong waves hit them and their survival became a question. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब इससे आपको जनरल आइडिया मिला कि क्या स्टोरी कह रही है और उसका टाइटल इटसेल्फ इनफ है आपको समझाने के लिए. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर. दैट मीन्स इफ़ there is a hard time in our life, if the family members are all together, then they will survive in any way. This is the main thing which the title itself says in the story. Now we are going to just read the story and just give you explanation in Hindi and English, trying to give you the explanation in Hindi and English again. In July 1976, my wife Mari, son Zonatan, 6 years, daughter Suzanne, 7 years old, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. जेम्स कुक जो कैप्टन थे उन्होंने शायद 200 साल पहले उन्होंने भी शायद इस टाइप का कोई वॉयज किया था, वैसे उनको भी करना था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in a wake of a famous explorer, and for the past 16 years he had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब ये जो बिजनेसमैन था वो 16 सालों से प्रयास कर रहा था, उसके बारे में सर्च कर रहा था कि कैसे ये वॉयज उसे कंप्लीट करना है, कैसे वो कर पाएगा शायद, क्योंकि उन दोनों हस्बैंड वाइफ का एक ख्वाब था कि वो वर्ल्ड इस शिप के द्वारा घूमे. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब बहुत समय उन्होंने इसको बिल्ड करने में भी लगा दिया है ना, प्रोफेशनली उसे बिल्ड करवाया और उसको ट्रायल भी कर दिया, शायद बहुत ख़राब वेदर में उसे ट्राई भी कर लिया कि वो कितना उस पर उस बैड वेदर को भी वो शायद झेल पाएगा या नहीं, उनका जो वेव वॉकर जो बोट था. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. शायद जो फर्स्ट फेज था उनका प्लान था, 3 साल का जो प्लान था, उनमें इतने मतलब 105,000 किलोमीटर उन्होंने बहुत सेफली शायद सेल कर लिया था अफ्रीका टू केप टाउन को. दैट बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Herb Sigger, to help us tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Ocean. फिर उन्होंने 2 क्रू मेंबर को हायर किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सदर्न इंडियन ओशन के जो वेदर है उसके लिए हमें कोई क्रू मेंबर्स चाहिएंगे जो ट्रेंड हों. तो अमेरिकन लेरी विगल और स्विस हर्ब सेगर को उन्होंने हायर कर लिया था कि उस रास्ते में वो उन्हें हेल्प करेंगे. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me. वो आंधियाँ जो थी वो जो बह रही थी, सेकेंड डे केप टाउन के जब वो बढ़ रहे थे तो आंधियाँ जो थी वो बढ़ रही थी, मगर कई सप्ताह तक वो ऐसे ही बढ़ती रहीं और वो चीज़ उन्हें शायद
परेशान नहीं कर रही थी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 5 meters एज हाई एज आवर मेन मास्ट. मतलब मेन जो हाइट थी उससे भी ज़्यादा वो वेव्स की जो हाइट्स थी वो बढ़ती जा रही थी. शायद ये थोड़ा सा चिंताजनक हो रहा था, वो अलार्म कर रहा था चिंता के लिए, मतलब हमें एक तरह से हमें संकेत दे रहा था. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, यानी खराब वेदर के बावजूद भी we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had no change soon, and it did change for the worse. उन्होंने इन सब संघर्षों में भी अपना 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर ईव भी सेलिब्रेट किया. मैंने सोचा कि शायद कुछ चेंज हो जाए, मगर चेंज हुआ. क्या हुआ चेंज? वो और भी ख़राब वेदर होता गया. एट डॉन on January 2nd the waves were gigantic. अब 2 जनवरी की शाम को जो वेव्स थे वो और ज़्यादा gigantic, मतलब बहुत विकराल रूप उस वेव्स ने, लहरों ने ले लिए थे. We were sailing with only a small storm zip and very still, making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we would see enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm zip and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stream. Then we doubled lashed. Everything went through our life raft drill, attached lines, downed oilskins and life jackets, and वेटेड. अब 2 जनवरी का जो सीन है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया. कैसा था? बहुत जाइजेंटिक वेव्स थे, और वो जो सेल करना था उनके लिए विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, तो उनके पास जो उसको रोकने की जो हम कह सकते हैं फीता या जो भी उनके पास जो सामान था उस शिप को शायद बांधे रखने के लिए, वो इस 8 नॉट्स वाला ही था. द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव. हर वेव्स इतने ऊंचे ऊंचे तक जा रहे थे कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते. बहुत स्क्रीमिंग था, मतलब भयानक पेनफुल वो मंज़र था उस दिन का, इतना पेनफुल. उन्होंने सब कुछ कर लिया. क्या किया उन्होंने? उन्होंने लॉप क्रॉस द स्ट्रीम, डबल लैश्ड एवरीथिंग, देन थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डाउन्ड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. सब कुछ तैयार कर लिया था. लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए, जो भी उनके पास जो प्रिकॉशंस थे लेने के उस बोट में, वो सब कुछ उन्होंने ले लिया. सिर्फ वेट कर रहे थे. किस चीज़ का वेट कर रहे थे? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स केम एट अबाउट 6 PM. विथ एन ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar, and an enormous cloud towered at the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. अब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ एकदम से शाम को 6 बजे. क्या हुआ? एकदम शांत हो गया, वैसे लगा बिल्कुल साइलेंस हो गया था. विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. और क्या हुआ? एकदम गुर्राता हुआ, तेज आवाज़ करता हुआ एक बहुत विकराल वेव आया, हिट किया उनके शिप पे. डबल हाइट से, जितने हमेशा डिस्क्राइब कर रहे थे उससे ज़्यादा डबल हाइट्स पे हुआ था. और क्या हुआ? इट वॉज अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. बहुत खतरनाक भयानक वो मंजर था उस शिप के ऊपर. मतलब एक कुछ छा गया था, मतलब एवरीथिंग वॉज बीन कवर्ड डार्क एट दैट टाइम ऑफ इवनिंग 6 PM. आगे हम कल पढ़ेंगे इस चैप्टर में.